This is where we left. Let's take an example, revision फिर से. Tokens, smallest unit of a program. How many tokens are there? Keyword, identifier, literals, and punctuators or operators. These are some tokens available. Then coming to identifier, these are the basic building blocks of a program which are used for giving the names. Then we studied some rules of the identifiers with the help of examples also. Then literals. Literals are referred to as constant or which are having fixed value. Some of the literals are string, numeric, boolean, special and literals collections. स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, जो डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग लिटरल्स. न्यूमरिक तीन थे, इन, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. इंट मींस पॉजिटिव होल नंबर्स एंड नेगेटिव होल नंबर्स. फ्लोट all the real numbers. Complex in the form of a plus bj form. Then boolean literals, what was that? Only it represents two values, that is true and false. That's it. Next is special literal. See, special literal means like, हाँ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हेन वी, मतलब मूवीज हमने देखा है कि जब हम लोग देखते हैं जनरली तो ट्रेन पे हम लोग अपना लगेज रख देते हैं उस सीट पे, सो दैट दिस सीट इज माइन, वो मेरा सीट है, मैंने लगेज रख दिया, अब मेरा मन है मैं कभी भी आके उस पर बैठूं, राइट. तो इन द सेम वे हमने मेमोरी में मेमोरी तो बना ली, स्पेस ले लिया मेमोरी से, बट आई हैव नॉट इंसर्टेड एनी वैल्यू इनटू दैट. कोई वैल्यू नहीं डाली, बस उसको बना के रख दिया और जब मेरा मन करेगा मैं उसमें अपनी वैल्यू इंसर्ट कर दूंगी. So this is special little. Okay. Next we have operators. What are operators? Operators are the tokens that trigger some computation action when applied to variables and other objects in an expression. ये वो होते हैं जिनके थ्रू आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो एंड आफ्टर दैट उन वेरिएबल्स पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हो एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट. Variables and objects to which the computation are applied is are called operands. So I'm going to give you an example here. Just give me a minute. Let's say I'm writing a plus b. Okay, so this plus is an operator. क्या कर रहा है ये? It is adding something. So operators क्या करते हैं? कुछ computation task perform करते हैं. So a plus is an operator and b and a are the operands. जिन पर calculation perform होती है उनको हम बोलते हैं operands. ठीक. These things you will learn of what is operator and what is the operand. Operator means the calculation of task or the uh, action which is going to happen, and the variables are known as operands. Okay. Then moving ahead, we have different types of operators. First is unary operators, in which these operators require only one operand to operate upon. इसमें आपको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, एक ही वेरिएबल चाहिए होता है कैलकुलेशंस करने के लिए, rather than two or more than two, like this plus, minus, this complement and not. All these four are unary operators. Okay, इसका नाम भी unary plus है, addition वाला plus नहीं है ये, ठीक है. This is different. When we will do the program, so slowly and gradually you will understand that what actually it is. Then we have binary operators. Binary operators means it requires two operands to operate upon. दो या दो से ज्यादा operands की requirement होती है. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर.
अर्थमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आ गया. और this percentage means हम we are not finding the percentage. This means that we are getting the modulus or the remainder. For example, if I say that what is 9 by 5, so you will say that 9 by 5 is equals to 1. ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आंसर आ रहा है 1 point something something आएगा. But this percentage sign is used to find out the remainder कि क्या remainder आया था, और उसको modulus भी बोलते हैं. So what will be the remainder? The remainder will be 4. Okay. So it is not a percentage sign. इसको हम modulus बोलते हैं. This is known as modulus. Okay. Then coming to this asterisk aspect, it means exponent. जब भी आपको हाँ जब भी आपने पावर यूज करनी है तो यू विल यूज asterisk aspect. Like I have to find out the power of 2 to the power 3. So I will write 2 asterisk asterisk 3. So वो क्या कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा 2 की पावर कितनी है 3 है, and it will give the result 8. In the same way we have floor division. Okay. Next we have bitwise operators and or bitwise or. This is XOR. All these operators you will need while doing the programming part. Okay. Then shift operators, shift left, and this is shift right. रिलेशन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ओके. जो भी कंपैरिजन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. जनरली हमको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इनकी अर्थमेटिक की, रिलेशनल की, लॉजिकल की और असाइनमेंट की. लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए एंड और. Assignment operators is equals to slash equals to plus equals to, all these are assignment operators. Okay, we will get to know that ये होते क्या है, इनका काम कैसे होता है, वो हम further I think chapter number 7 में है वो. That time we will get to know. Then we have punctuators. Punctuators क्या होते हैं, जिनके थ्रू आपकी प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स और स्ट्रक्चर मेंटेन होता है. that are known as punctuators. Like inverted, double inverted, hash, slash, all the brackets, at the rate, जितनी पंक्चुएशन हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं. इनके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट वी हैव bare bones ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम. एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. So just give me a second and I am going to show you a program right away. Screen is here. As you can see here is a small program. एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैंने जिसमें एक फंक्शन है def. अभी आप सिंटेक्स पे नहीं जाओगे, सिंपल यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. It is a function which is finding the sum of first and natural number. This is a function which is finding the sum of odd numbers, and this is a function which is finding the sum of even numbers. Okay, first and even numbers. सपोज आपको बोला कि भाई फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम निकालो, तो ये एक फंक्शन बना दिया एंड इट विल फाइंड आउट द सम. ओके, एंड जस्ट गिव मी अ here. I'm going back to my Python. So basically what we have here, so yes, components of a Python program कौन कौन से होते हैं. First is expressions, comments, so the basic components of a program are comments, expressions, statements, functions, block, and indentation. On these 4-5 things, the programming is built upon. Okay,
So let's study what exactly these things are. So first is expression. Expression is any legal combination of symbols that represent a value. An expression represents something which Python evaluates and then produces a value. क्या होता है कि इन Python प्रोग्राम, अगर मैं अपना Python का प्रोग्राम अभी खोलूं यहाँ पर, here is my program. In this, you are watching. Don't do that. Okay, so you are watching here that I have written something like this. ये is equals to के बाद वाला एरिया मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए दी और वो उसने क्या करा, परफॉर्म किया. ठीक है, तो दीज आर नोन एज एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस क्या होता है नॉर्मली, वो पार्ट होता है जिनके थ्रू आप कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है. लाइक A-10 इट इज अ स्टेटमेंट. एक्सप्रेशन क्या करेगी, कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी. B is greater than or less than 20, ये भी क्या एक स्टेट एक्सप्रेशन है and it will produce something, some result it will produce. Okay, and on the basis of that we will do some work. Then we have statements. Statements क्या होती हैं? It is a programming instruction that does something, जो कुछ वर्क करता है या कुछ एक्शन टेक प्लेस करता है. लाइक A is equals to 50, मैंने A की वैल्यू 50 असाइन की. B is equals to A-10, A की वैल्यू असाइन की. D. ठीक है, तो these are the statements. हर एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ही बोलते हैं बेसिकली, जो कुछ टास्क परफॉर्म कर रही है. देन वी हैव कमेंट्स. कमेंट्स क्या होते हैं, एडिशनल रीडेबल फॉर्मेट्स होते हैं which are used in a programming to clarify the source code. I told you earlier also कि हम लिखते हैं as you can see here, like मैंने तो ये प्रोग्राम बनाया है इसलिए आई कैन से कि ये जो प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, ये फाइंड आउट कर रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर. बट इफ आई गिव यू दिस फाइल एंड से कि भाई बताओ ये क्या क्या फंक्शंस हैं, तो विल यू बी एबल टू टेल मी? यू विल, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट. पहले आप देखोगे भाई क्या फॉर्मूला लगा है, पूरा प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि हाँ ये फंक्शन ये टास्क परफॉर्म कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स बना देते हैं. कैसे बनते हैं? वी यूज हैश सिंबल एंड राइट, here we write the description of that particular line which we want to, like this, find out क्या कर रहा है. ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन कर रहा है कि भाई फर्स्ट n नंबर्स के सम फाइंड आउट कर रहा है. नाउ व्हेन आई गिव यू दिस फाइल, सो व्हाट विल हैपन, यू विल इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई इस फंक्शन का काम क्या है. अब मुझे क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशन या कुछ परफॉर्म नहीं करनी होगी, यू कैन इजीली एक्सेस. तो दीज आर कमेंट्स. कमेंट्स कभी भी पाइथन इंटरप्रेटर रन नहीं करता है, इट ऑलवेज रिमूव. सेकेंड, हम कहीं पर भी कमेंट लगा सकते हैं. मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर भी कमेंट यूज कर सकती हूँ. ये क्या कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करके दे रहा है. ठीक है, तो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट मींस वो कमेंट जो एक लाइन में फिनिश हो जाए, दैट इज नोन एज सिंगल लाइन कमेंट. सपोज मुझे एक और लिखना है इसके आगे, तो मैंने क्या किया, कॉपी एंड देन पेस्ट. ठीक है, सिंगल लाइन ही है, एक लाइन में मेरा एक कमेंट खत्म हो गया. एंड हाउ वी राइट अ कमेंट, बाय यूजिंग हैश सिंबल. हैश सिंबल के थ्रू हम लोग कमेंट स्टार्ट करते हैं. बट इफ आई वांट टू राइट कमेंट्स ऑफ मल्टीपल लाइंस, बहुत सारी लाइन का कमेंट चाहिए, तो व्हाट विल यू डू? इन दैट केस वी यूज ट्रिपल कोट्स. सपोज यहाँ से बनाया 1 2 3, एज यू कैन सी हियर, जैसे मैंने ट्रिपल कोट्स लगाए, कोड बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया. इट मीन्स नाउ दिस कोड इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट, और ये पाइथन इंटरप्रेटर रन नहीं करेगा. पाइथन इसको रिमूव कर देगा, छोड़ देगा. इट विल नॉट मेक एनी
प्रोसेसिंग इनटू दैट कमेंट। अब ये कमेंट बन चुका है और देखो कितनी सारी लाइंस में है, 7-8 लाइंस आई हैव टेकन। जहां से कमेंट स्टार्ट करना है वहां पर ट्रिपल कोट्स लगा दूं, एंड जहां एंड करना है, सपोज मुझे यहाँ एंड करना है तो मैंने यहाँ इसको बंद कर दिया। ठीक, एनी कंफ्यूजन? सो यू कैन आस्क राइट अवे। कमेंट समझ में नहीं आया हो क्या होता है? दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि व्हेन वी मेक प्रोग्राम्स तो हम कमेंट्स बनाते ही बनाते हैं फॉर आवर सेल्फ ओनली, अपने लिए ही बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमने क्यों बनाया था ये फंक्शन, या ये वेरिएबल लिया था तो क्यों लिया था। ओके, तो वी राइट द कमेंट्स। अब हम यहाँ पे हम कितना भी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट वी हैव functions. Function is a code that has a name and can be reused by specifying its name in the program where needed. Function क्या होता है? एक छोटा सा प्रोग्राम ही होता है, कोड होता है, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो थ्रू आउट एनी प्रोग्राम, बार बार उसको क्या बोलते हैं, लिखे बिना। लाइक इन दिस SON sun, SOOD, SODD एंड SO even, ये तीनों जो नेम है ब्लू कलर में, दैट आर फंक्शंस। अब कभी भी मुझे, अब मैंने फंक्शन बना दिया ये वाला, ये क्या कर रहा है? एन नेचुरल नंबर्स का सम परफॉर्म कर रहा है। नाउ व्हेनेवर इन द प्रोग्राम अगेन, नीचे मुझे प्रोग्राम में फिर से मुझे एक ऐसा काम करना पड़ा कि वहां पे मुझे सम चाहिए नेचुरल नंबर्स का, तो मैं क्या करूंगी? फिर से प्रोग्रामिंग करूं? नो, आई कैन जस्ट राइट दैट फंक्शन और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और यहाँ पर टास्क परफॉर्म करेगा। फंक्शन क्या करता है? आपके प्रोग्राम को एक तो कम करता है, रिड्यूस करता है। सेकेंड थिंग, रीयूजेबिलिटी, वी कैन रीयूज द सेम फंक्शन एन नंबर ऑफ टाइम्स एनीवेयर, कहीं पर भी हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है ग्रीट और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। क्या आइडेंटिफिकेशन होता है फंक्शन का? नेम होता है और स्मॉल लेटर ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, डेफ अभी नहीं पढ़ेंगे क्या होता है। मैंने फंक्शन बनाया विशिंग, ये जो फंक्शन है वो गुड मॉर्निंग विश करेगा सबको, तो दिस इज फंक्शन। हमने एक्सेल में भी पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे हमने एक्सेल में, उसमें भी क्या होता है? ब्रैकेट्स होते हैं। इन द सेम वे फंक्शंस आर ऑलवेज इन ब्रैकेट, ब्रैकेट की फॉर्म में होते हैं फंक्शंस। ओके, देन वी हैव वन इम्पोर्टेंट थिंग, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। पाइथन में क्या है? कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, लाइक इन जावा और इन सी प्लस प्लस और इन एनी अदर लैंग्वेज। जब हम कोई भी फंक्शन बनाते थे या कंडीशंस लगाते थे या लूप चलाते थे, तो वी यूज टू ओपन ब्रैकेट्स एंड देन क्लोज इट, बट हियर we do not use any brackets, here we use indentation. Indentation means what? It means spacing. अगर आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे रखे हैं, सब एक लाइन में क्यों नहीं है? मीन्स टू से कि ये जो है ये यहाँ क्यों नहीं है? why it is not here? Because हमने क्या किया हुआ है, यहाँ इंडेंटेशन दे रखा है, ये एक प्रोग्राम है। इट मीन्स अब जो भी काम होगा वो प्रोग्राम के अंदर होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको अंदर डालना पड़ेगा प्रोग्राम के। दिस इज हाउ वी इंसर्ट वी कैन से दैट ये जो जितना भी टास्क परफॉर्म हो रहा है ये सारा इस प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। उसके बाद देखो मैंने एक और लूप लगाया, दिस इज अ लूप, बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इट इज। और इसके बाद तुरंत ही हमने फिर इंडेंटेशन लगा दिया। इट मीन्स कि ये जो टास्क परफॉर्म होगा वो इसके अंदर परफॉर्म होगा, इस लाइन के अंदर परफॉर्म होगा। So indentation plays a very important role in Python programming. Let's say मैं इसको क्या करती हूँ, पीछे कर देती हूँ, और now I'm going to run this program. क्या दे दिया इसने? एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। क्लियरली बोल दिया कि भाई हियर इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि चल क्या रहा है। अब चलो मैं काम करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन। और जब भी हम देखो, मैंने यहाँ पर जब लिखा
पर अभी तो ये रन भी नहीं होगा, हो जाएगा। जब हम फिर से स्टार्टिंग से लिखते हैं, इट मीन्स वी आर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। आई एम गोइंग टू कॉल दिस लाइक सन and 5 I'm giving, or I'm going to run this. Okay, फिल करना भूल गए। एक सेकंड का तो टाइम देना मुझे। बेसिकली हुआ क्या, जब भी हम स्टार्टिंग से बिल्कुल कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, और अब हम एक न्यू टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसका उस फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इंडेंटेशन वेरी वेल। इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, आई थिंक स्लाइड्स तो मेरी खत्म हो गई हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वेरिएबल्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई वांट टेल यू, क्या होता है। ओके, सपोज दिस इज माय रैम। ओके, एंड द मेमोरी इज मेड इन अ ब्लॉक साइज। अगर मैं बात करूं अदर लैंग्वेजेस की, अदर लैंग्वेज में क्या होता है, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू डाल दी 5। बहुत ध्यान से समझना, ये एक मेमोरी है, यहाँ पर कुछ एड्रेसेस एलोकेटेड है लाइक 101, 102। कोई भी एक मेमोरी को एड्रेस है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हो गया 7। ठीक है, दिस इज रैम, और यहाँ पे हर एक ब्लॉक को एक एड्रेस अलॉट हो गया। तो जब मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 5, तो उसने कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। लेट्स से ये वाली कर ली, डेटा तो डाल दिया 5, रेफरेंस दे दिया a, एड्रेस कितना है 106। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर बाद क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 7 कर दिया। तो क्या होगा, ये 5 यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बट पाइथन इज समथिंग डिफरेंट। पाइथन कुछ ऐसे वर्क नहीं करता। पाइथन क्या करता है, जैसे ही मैंने A5 बनाया तो उसने इसको मेमोरी को दे दिया और एड्रेस बता दिया दैट इट इज 106 एड्रेस। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 7 के नाम से। देखो नाम सेम है, कंसिडर तो ये होना चाहिए कि वैल्यू ओवरलैप होनी चाहिए, बट पाइथन इज क्वाइट स्मार्टर। वो क्या करता है, वो एक नया स्पेस बना लेता है जहां पर 7 स्टोर कर देगा, और उसको भी क्या नाम दे देगा, a, और उसका एड्रेस हो जाएगा 104। इट मीन्स सेम नेम के दो वेरिएबल्स हो गए, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस। दिस थिंग यू हैव टू लर्न, बिकॉज ये आगे प्रोग्राम में काम आता है। तो इट मीन्स जब भी हम एक वेरिएबल एलोकेट करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, हैंड टू हैंड वो न्यू मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, रादर देन इन अदर लैंग्वेजेस। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। बाकी लैंग्वेजेस में एक वेरिएबल के नाम से आप एक ही एड्रेस ले सकते हो। मैं इसको अगर A1 कर देती तो अदर लैंग्वेजेस में अलग स्पेस आ जाता, बट क्योंकि नाम सेम था, तो दैट इज वाई क्या हुआ, जहाँ ए की वैल्यू 5 थी, उस 5 को हटा के उसने 7 कर दिया। बट पाइथन ने क्या करा, पाइथन ने दोनों को ही अलग अलग स्पेस दे दिया, भाई 5 यहाँ पे आ जाओ और 7 आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हाउ अ वेरिएबल वर्क्स, और हाउ, हाँ, वेरिएबल कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है मेमोरी में। देन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज एंड राइट हैंड साइड वैल्यूज। हम सबको पता है एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होता है। ओके, लेट मी टेल यू, दिस इज माय पाइथन शेल। दिख रहा है, नहीं, दिस इज माय पाइथन शेल। इफ आई राइट a is equals to 10,
इट मीन्स व्हाट, लेफ्ट साइड पर ए है, राइट साइड पर 10 है, इज दिस करेक्ट? एल लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होती है? जो सबको कुछ होल्ड करके रखती है। लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होती है? विच इज होल्डिंग समथिंग। एंड राइट साइड वैल्यू क्या होती है? जो मतलब जो वैल्यू है, लाइक इफ आई राइट 10 इज इक्वल्स टू ए, तो इज इट करेक्ट? नो, ये हमेशा सिंटेक्स एरर देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग तो उसको लगा कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का रूल होता है कि भाई वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसने पहले ही असाइन दे दी कि कैन नॉट असाइन टू लिटरल। सेकेंड थिंग, हम कभी भी आरएचएस की वैल्यू एलएचएस में लिख सकते हैं और एलएचएस की वैल्यू आरएचएस में नहीं लिख सकते। जो भी चीज वैल्यू को होल्ड करेगी उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना पड़ेगा। ओके, लाइक इफ आई एम राइटिंग a is equals to 20 plus b, दिस इज करेक्ट। अच्छा, b इज नॉट डिफाइंड, मैंने b को डिफाइन नहीं किया था, तो मैं लिख देती हूँ a is equals to 20 minus 5, this is correct. But if I am writing 20 minus 5 equals to a, so this is wrong. Okay, so we have to learn कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या होती है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या होती है, जिसे हम मैथ्स में करते हैं। ऑल द वेरिएबल्स आर लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द नंबर्स आर राइट हैंड साइड, सेम वी डू इट हियर। नेक्स्ट इज, अगर आपको मैंने भी किया a is equals to 10, b is equals to 5, c is equals to 15, मैंने 3 लाइन वेस्ट कर दी इन असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। आई वांट कि एक लाइन में खत्म हो जाए, तो व्हाट आई कैन डू, a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू 10 कॉमा 5 कॉमा 15। यस, तो हम 20 कर देते ताकि आपको याद रहे। if I want to assign multiple variables to multiple values, so what I will write like this way, separated by comma. Now let's say प्रिंट करते हैं a की वैल्यू, ये c की वैल्यू प्रिंट करते हैं। c को मैंने प्रिंट कराया, उसने क्या दे दिया मुझे, 20 मुझे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू मुझे काफी सारे वेरिएबल्स में देनी है, लाइक अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c is equals to 10. Again, 3 lines are wasted. What I can do, a is equals to b is equals to c equals to 15. अब डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो, एंड वेन एवर आई विल प्रिंट, तो मुझे वैल्यू दे देगा 15। ओके, दिस इज असाइनिंग मल्टीपल असाइनमेंट्स। क्या हुआ, एक ही लाइन में हमने 3 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करी। हियर ऑल्सो 1 line assign values to 3 variables. Okay, second thing is how to take input and output. देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स when we are taking something from the user. Output means when we are printing that result. Like I am writing, अच्छा 4 मिनट रह गए हैं, नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लगाई इनपुट कमांड, ये लर्न कर लेना कमांड, और मैंने मैसेज दिया व्हाट इज योर नेम। ओके, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इनपुट लिया, इनपुट मीन्स यूजर विल टाइप हिज नेम, और मैसेज दे दिया भाई टेल मी व्हाट इज योर नेम। तो क्या करेगा ये, इसने मुझे बोला व्हाट इज योर नेम, आई एम राइटिंग माय नेम इज एलिस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई नेम के अंदर वो एलिस गया या नहीं गया। तो नेम, it has given that the name is Alice. Input statement is used to take input from the user, and print statement is used to display the result. Okay, print से हम display कराते हैं, input से हम user से value लेते हैं। Okay, for example, when we used to log in Facebook account or any other account, तो वो आपसे user ID और password मांगता है, that is input। उसने आपसे कुछ लिया, on the basis of that it produces something, फिर क्या करा उसने, आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर दिया। in the same way, input command is used to take input from the user, and print command is used to display the result to the user.
जब भी आपको कोई रिजल्ट डिस्प्ले कराना होता है तो यू यूज दिस कमांड, print command. So that's it for the day. Now if anybody is having any confusion, so you can ask.